Hello, my dear parents. How are you all? I hope you all are fine. So this is Sabir Ksar here, and I welcome you all to my YouTube channel. So I am back here with the lecture number 4 of our interview series. Let's begin the lecture. So today we are going to discuss about the subsidiaries of RBI, SIDBI. This is SIDBI, SIDBI, NHB, National Housing Bank, and SEBI. Okay, SEBI, SEBI. Then we'll discuss about money market, capital market, foreign banks with some of the examples and their headquarters, small finance banks, payment banks, urban cooperative banks, and prompt corrective action. We shall also discuss about NBFCs. मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, but we will also discuss about NBFCs. ठीक है? We'll also deal with some of the examples of the small finance banks, payment banks, urban cooperative banks, and their headquarters. So let's start the lecture. So as we know, RBI is the regulating body of banking industry in India, and RBI has the responsibility to make sure that our economic growth keeps its correct path and pace. So we already discussed about the functions of RBI, that were bankers to banks, banker to government, currency circulation, foreign exchange reserve management, consumer education and protection. So these were some of the functions which we dealt in the last lecture. In this lecture, we are going to discuss about the subsidiaries of RBI. So following are the fully owned subsidiaries of RBI: Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India, DICGC. So it was established for providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities इन केस एक बैंक जो है वो डूब जाता है, बट जो वहाँ पे कस्टमर्स हैं उन्होंने तो पैसा जमा करवाया हुआ है, तो उनके जो जमा पैसे हैं उनका ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं गारंटी लेता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. लेकिन मैक्सिमम पहले ये 1 लाख था, बट अब ये मैक्सिमम हो गया 5 लाख. मतलब एक व्यक्ति के अकाउंट में 5 लाख तक का ही डिपॉजिट्स का ये इंश्योरेंस ले सकता है. इन केस बैंक जो है वो डूब गया तो आपको आपका 5 लाख तक अगर आप डिपॉजिट है तो वापस मिल जाएगा, उससे ज्यादा है तो उसका गारंटी नहीं है. ठीक है. दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज BRBNPMPL. ठीक है. सो ये जो है प्रेस मैनेज करता है, इट मैनेजेस 2 प्रेस, वो है मैसूर और साल्बनी. ठीक है. मैसूर जो है कर्नाटका एंड साल्बनी वेस्ट बंगाल. तो ये दोनों हैं आरबीआई के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ये जो दोनों प्रेस हैं. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है नासिक और देवास के जो प्रेस हैं, एंड दोज आर मैनेज्ड बाय सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL. ठीक है. तीसरा है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज नोन एज रेबिट. इट वाज एस्टैब्लिश्ड in 2016 and it delivers and manages the IT projects of RBI. ठीक है. It manages the IT information technology projects of RBI. चौथा है IFTAS, Indian Financial Technology and Allied Services. IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज. तो आपको ये 4 जो है नेम्स याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है आरबीआई के बारे में, फंक्शंस और सब्सिडरीज के बारे में. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिडबी के बारे में. तो व्हाट इज सिडबी? सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? Small Industries Development Bank of India. It was established in 1990 and it was established for the development of financial institutions in India. Its headquarter is in Lucknow and its aim, इसका aim अगर आप बोलें तो to provide refinance facilities. Refinance का मतलब मैंने आपको बताया था, एक इंस्टीट्यूशन है वो कस्टमर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है. इस इंस्टीट्यूशन को कौन प्रोवाइड करता है? तो ये जो कहलाएगा फाइनेंस, बट ये जो कहलाएगा वो रीफाइनेंस है. ठीक है. ये इसको फाइनेंस देने के लिए इसको फाइनेंस कौन देता है? तो यहाँ पर सिडबी ये काम करता है रीफाइनेंस का. नाबार्ड में भी हमने ये चीज
देखी थी, ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा. सो इट्स एम इज टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लेंडिंग टू industries and serve as the principal financial institution इन MSME सेक्टर. जो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो सेक्टर होता है इसमें ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. जैसे रूरल की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन से रूरल को फाइनेंशियल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता था? नाबार्ड, ठीक है. और सिडबी का अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है देवेंद्र कुमार सिंह. अभी प्रेजेंट में एज ऑन, मैं मार्च की बात कर रही हूँ, ठीक है, मार्च 2021. तो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है देवेंद्र कुमार सिंह. अब हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में. NHB, it was established in 1987 and it is an apex financial institution for housing. It was established with an objective to operate as a principal agency to promote, क्या promote करने के लिए? Housing finance को promote करने के लिए, both at local and regional level, and to provide finance and अदर सपोर्ट्स, ठीक है. इसके एट प्रेजेंट में कौन है? इसके एट प्रेजेंट में है चेयरमैन शरद कुमार होता, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप कोई इंस्टीट्यूशन पढ़े उसका चेयरमैन जरूर देख लें. तो ये बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB. अगर हम बात करते हैं सेबी के बारे में, Securities Exchange Board of India, तो it was established on 12 April 1988 and statutory powers जो है इसे दिए गए थे 1992 में थ्रू द सेबी एक्ट 1992, ठीक है. एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक मार्केट रेगुलेटर है जो कि कंट्रोल करता है सिक्योरिटी मार्केट को. जो हमारे यहाँ पर सिक्योरिटीज मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इसे कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है. तो ये एक मार्केट रेगुलेटर है, आप कह सकते हैं. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप कह सकते हैं, ठीक है. सेबी के पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो इट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट, to promote the development and hassle-free functioning of the securities market, and to regulate the business operations of the security market. Protect, promote, regulate, ये तीन जो है वर्ड्स याद रखिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो आखिर क्या होता है? मनी मार्केट क्या होता है? एक्चुअल में मनी मार्केट होता है द मार्केट डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर. 1 ईयर तक का जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो जो फंड्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स. तो द मार्केट डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स इज नोन एज मनी मार्केट. और इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको RBI देखता है, ठीक है. जैसे कि ट्रेजरी बिल्स वगैरह हमने देखे हुए हैं. अब ये देखिए इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ट्रेजरी बिल्स का, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह का. और कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट होता है एक ऐसा मार्केट विच डील्स इन सिक्योरिटीज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स हुज मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर. और इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और इसका अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. तो कैपिटल मार्केट में ये सब कुछ आता है, ठीक है. सो दैट वाज अबाउट NHB, सेबी, सिडबी एंड सब्सिडरीज ऑफ RBI. फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? लेट्स सी, फॉरेन बैंक्स. तो फॉरेन बैंक्स के बारे में अगर आप बात करें तो कुछ आपको ऐसा पूछा जा सकता है ना कि फॉरेन बैंक्स कौन कौन से हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल बताइए. तो आप बता सकते हैं मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स. HSBC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में, ठीक है, UK. फिर आप बता सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, SCB, लंदन में है इसका भी. सिटी बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, US, ठीक है. और आप एक और बता सकते हैं डॉयचे बैंक. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ठीक है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको इसका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। 200 करोड़ है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज अ नीचे बैंकिंग सेगमेंट इन द कंट्री एंड इज एम्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिनको दूसरे बैंक्स जो हैं वो सर्व नहीं करते। नीचे सेगमेंट मतलब ऐसा ही कोई सेगमेंट जो दूसरे के द्वारा सर्व नहीं किया जाता है, उसको ये सर्व करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। आप इन्हें यूनिवर्सल बैंक नहीं कह सकते। यूनिवर्सल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आरआरबीज होती हैं, बट ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं। आप इन्हें क्या कह सकते हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक्स। जस्ट अ सेकेंड। Just a student, just a second, students cooperate. ओके, सो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक नहीं, क्या कह सकते हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक कह सकते हैं, ठीक है? क्या कह सकते हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक। So small finance banks are differentiated banks which serves, or you can say this is a niche banking segment in the country which is aimed to provide the financial inclusion ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को स्ट्रीम लाइन पे, मेन स्ट्रीम लाइन पे लाना चाहती हैं जो कि दूसरे बैंक्स के द्वारा सर्व नहीं किए जाते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ है और ये सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कौन कौन से हैं? माइक्रो इंस्टीट्यूशंस या स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं या स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड दे प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, डिपॉजिट और लेंडिंग प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल अगर आप बताएंगे तो एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हैं? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। अब एयू की बात करें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका है जयपुर में। इक्विटास की बात करें तो इक्विटास का है चेन्नई में। अगर हम सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय है मुंबई में, ठीक है, सूर्योदय है मुंबई में। उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी में। उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु में, ठीक है। तो आपको ये कुछ फाइनेंस बैंक्स के नेम्स याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो थे उनके लिए रिकमेंड किसने किया था? कौन सी कमेटी ने? नचिकेत मोर कमेटी ने, ठीक है, ये याद रखना है हमें। और याद रखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी और पेमेंट बैंक्स को भी नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल अगर आप बोलें, अच्छा पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? नॉर्मली बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं बट दे कांट लेंड। यही तो डिफरेंस होता है जो मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में। डिफरेंस क्या है? ये लेंडिंग नहीं कर सकते, दे कांट लेंड, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं एक लेंडिंग होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। एनआरआई डिपॉजिट्स, एनआरआई से डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते। एंड दे कैन नॉट डू क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो नॉर्मल बैंक से इनको अलग करते हैं। और जो पेमेंट बैंक होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स आप क्या बता सकते हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक न्यू दिल्ली, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ये सब कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। और पेटीएम कहाँ पर है? नोएडा में। तो ये आपको याद रखने कुछ पेटीएम कुछ पेमेंट बैंक्स के नेम्स। अब हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दीज आर पार्टली रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जैसे कि इनके जो ऑपरेशंस वाले पार्ट होते हैं, रिस्क कंट्रोल वाले पार्ट, लेंडिंग नॉर्म्स, वो सबको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आपको ऐसे ही बताना है, ठीक है, कि दीज आर बैंक्स, दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज बट दीज आर पार्टली रेगुलेटेड बाय आरबीआई
एंड जो इनका मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन, अगर डिस्ट्रेस का सिचुएशन आ गया तो उसमें रेजोल्यूशन का जो काम करेंगे वो कौन करता है, उनका मैनेजमेंट कौन करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सम पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसका जो रजिस्ट्रार होता है उसके पावर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। यूसीबी का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें जो बोरोवर होता है ना, बोरोवर कैन बी अ शेयर होल्डर, मतलब एक शेयर होल्डर जिसका शेयर होल्डिंग है उस बैंक में वो बोरो भी कर सकता है। ठीक है, बट ये नॉर्मली बैंक्स में नहीं होता है, नॉर्मल बैंक्स में नहीं होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको पता होगा कि आरबीआई जो है जब बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, नॉर्मल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, तो आरबीआई उन्हें पीसीए के फ्रेमवर्क में डालता है। पीसीए क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उस तरीके से अगर यूसीबी की बात करें तो इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क, ये करंट से रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, SAF, ये नया फ्रेमवर्क लाया गया है, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। एंड दिस मूव ऑफ आरबीआई केम इन द बैकड्रॉप ऑफ द एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन पीएमसी बैंक। ठीक है, आपको पता ही होगा जो पीएमसी बैंक का हुआ था अभी केस, उसके बाद ही ये जो है मूव ये आया था आरबीआई के द्वारा, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया था। और कब, जब एनपीए जो है वो 6% से ज्यादा हो जाता है, 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स के लिए लॉसेस अगर बियर कर रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो इनका कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो 9% से नीचे चले जाए। ठीक है, एनपीए कितना, एनपीए जो है वो 6% ऑफ द नेट एडवांसेस से, जो हमारे लोन्स होते हैं, नेट एडवांसेस होते हैं, उन पूरे में से 6% अगर नॉन परफॉर्मिंग हो गया, उससे ही ज्यादा बढ़ गया, तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है लॉसेस 2 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के लिए, और तीसरा कंडीशन है कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो 9% से भी नीचे चले जाए, तब क्या होता है, ये सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इसे रख लिया जाता है। अभी अभी आपने सुना होगा कि शिवालिक मर्केंटाइल बैंक जो है वो फर्स्ट बैंक ऐसा बना है जो कि यूसीबी से, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से उसने कन्वर्ट किया है। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और ये जो शिवालिक मर्केंटाइल बैंक है इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ है, सहारनपुर यूपी में है। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है, 100 करोड़ पहले इनका अगर है, 100 करोड़ अगर है तो वो इस प्रोसीजर में एंटर कर सकते हैं, बट उन्हें 200 करोड़, किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना है तो वो पहले तो 100 करोड़ का है, ठीक है, बट विद इन 5 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसे अपना कैपिटल 200 करोड़ कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और करंट में काफी ज्यादा चल रही है, अपने कैपिटल को 200 करोड़ कर लेना है 5 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो that was about UCB and SFB and payment banks. Now let's talk about NBFCs, non-banking financial companies. NBFCs have been established with the concept of shadow banking. कभी भी आपसे NBFC पूछा जाए तो ये वर्ड जरूर याद रखिए, शैडो बैंकिंग, या तो आपसे शैडो बैंकिंग करके भी पूछ सकते हैं। ओके, they provide banking services but they do not have license, they are not allowed to take demand deposits, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, they are not allowed to take demand deposits, और आपको ये भी याद रखना है कि these are registered under कंपनी एक्ट, ये क्वेश्चन भी आया था अभी मेंस में, कंपनीज एक्ट 1956 में के अकॉर्डिंग इन्हें रजिस्टर किया गया है। ठीक है, नॉट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर बैंकिंग सर्विसेज बट दे डू नॉट हैव लाइसेंस एंड दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स एंड दे कैन नॉट इशू डीडी वगैरह इशू नहीं कर सकती। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, दैट मीन्स एनबीएफसी जो है आपको कभी भी चेक वगैरह
आप नहीं ले सकते। आप इससे जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो चेक वगैरह जो है इसका जो इसमें काम नहीं करने वाला। और DICGC से जो हमको इंश्योरेंस मिलता है, जो RBI का एक सब्सिडरी जिसके बारे में हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, तो वो इंश्योरेंस हमको NBFCs के केस में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। और तो ये करती क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस देती है, शेयर्स स्टॉक्स बॉन्ड्स में डील करती है, इंश्योरेंस बिजनेस करती है। एंड अभी अभी एक RBI ने एक, अगर हम रीसेंट की बात करें अभी प्रेजेंट की, तो RBI ने एक प्रपोजल दिया है। RBI हैज प्रपोज्ड 4 टायर स्ट्रक्चर फॉर NBFCs। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो 4 टायर कौन कौन से हैं? बेस लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है और टॉप लेयर है। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेशंस हमें करना है। NPA को भी बोला गया है कि 180 डेज से अब 90 डेज कर देना चाहिए NBFCs के केस में, ठीक है। ये जो टॉप बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और क्या है, टॉप लेयर, ये बोला गया है। इसमें जो अपर लेयर पे अगर कोई है NBFCs, तो उसमें बिल्कुल एनहेंस्ड रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें करंट से रिलेट करके आप अच्छे से याद रखिए। सो NBFCs, शैडो बैंकिंग क्या होता है और क्या डिफरेंस है NBFCs और बैंक्स में, ये चीजें याद रखिए। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस। इन सब के बारे में आपने एकदम श्योर है कि सुना ही होगा, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट NBFCs। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं NBFCs के बाद? हाँ, हमारा एक टॉपिक बचा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? इट इज अ फ्रेमवर्क अंडर विच द just a second, PCA, prompt corrective action. It is a framework under which the financially weak and mismanaged banks are put under watch by RBI. अगर आपसे पूछे कि what is prompt corrective action, it is a framework which has been brought in 2002 under which the financially weak and mismanaged banks are put under watch by RBI. RBI कुछ क्वालिटेटिव टूल लेकर आता है, कुछ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम बात कर सकते हैं रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, CRR की, ये सभी चीजों का यूज करता है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इट इज द डायरेक्ट एक्शन, ओके। In this, direct action is taken on weak banks to ensure the financial health of a bank. उसमें क्या देखा जाता है? CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो 9% से अगर नीचे चला जाए, नेट NPAs जो है वो 10% से ज्यादा जा रहे हैं, अगर रिटर्न ऑन एसेट्स का क्राइटेरिया रखा गया है 0.25%, लेवरेज रेशियो भी इसमें देखा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आउट ऑफ ऑर्डर चल जाती हैं तो RBI जो है बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डाल देता है, ठीक है। और फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, लेंडिंग वगैरह करने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो आज के हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ करंट का देखते हैं। करंट में RBI ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट के जो रूल्स हैं, एकदम रिसेंट का ये न्यूज़ है कि उसे टाइटन किया जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल बिकॉज बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह को लेकर। तो कुछ मास्टर गाइडलाइंस लाई जाएंगी फॉर द डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी। कुछ ऐसा हो सकता है, RBI ने कहा है जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, एप्स हैं, उन्हें कहा है RBI ने कि जैसे समझ लीजिए हम एक फ़ोन पे हम कुछ करते हैं पेमेंट वाले ऐप में, तो OTP जो है वो उसी मोबाइल पे आता है, हमें ऊपर से ही पॉपअप दिखाता है, उसी में से नंबर OTP का देख के हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। RBI सोचता है कि ये सेफ नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं सेफ्टी के रूप में इसे बनाया गया है। रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप में वो OTP आता है, बट कुछ ऐसे बेटर ऑल्टरनेटिव्स तैयार करने को RBI ने कहा है इन पेमेंट ऐप्स को या इन OTT प्लेटफॉर्म्स को, कि OTP जो है वो सेम डिवाइस पे ना आए।
स्ट्रॉन्ग कैप्चा कोड्स रखा जाए, ठीक है, ताकि कोई भी ना एंटर कर सके। ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, एक बेटर ग्रीवेंस मैकेनिज्म जहां पर हमारे ग्रीवेंसेस का अच्छे से रिड्रेसल हो, ठीक है। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट, कि हम जब भी कोई ऐप में कुछ भी पेमेंट करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका पहले से जो कार्ड है, फॉर एग्जांपल एसबीआई का एक कार्ड वहां पर पहले से सेव रहेगा आपका, और इसमें ऐसे ऐसे करके आपका कार्ड डिटेल्स दिया रहेगा, लास्ट का कुछ नंबर लिखा रहेगा, और यहाँ पर सारे डिटेल्स ऑलरेडी फेच्ड रहते हैं पहले के रिकॉर्ड से, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीवीवी डालना होता है। तो आरबीआई ने कहा है कि you should not save the you should not store the customer sensitive info। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल देन दैट आपको बार बार कार्ड नंबर वगैरह डालने पड़ेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। तो एक ऐसा रूल अभी लाया गया है आरबीआई के द्वारा, मतलब इट इज प्लानिंग टू टाइटन द डिजिटल पेमेंट रूल्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अभी तो हमने एनबीएफसी के 4 टायर्स के बारे में बात किया, वो आपको याद रखना है। फिर एक आईटी रूल्स 2021 आया है अभी, फेब 2021 की बात है, कि जो आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 ये लाया गया है। और जो आईटी एक्ट है 2000, इसके सेक्शन 87 में ये बातें कही गई है, वहीं पर ये चेंजेस किए जा सकते हैं। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेलकम टू डू द बिजनेस, आरबीआई सेज, बट नीड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, दिस ये सब कुछ जो लाया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेलकम टू डू द बिजनेस, बट दे नीड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉस ऑफ इंडिया। ये आईटी रूल्स क्यों लाए गए हैं? रीजन है फेक न्यूज, ऑब्सीन कंटेंट, फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, पॉर्न रिलेटेड कंटेंट है, विमेन को हरास करने की कोशिश की जाती है, रैम्पेंट अब्यूज हो रहा है आप कह सकते हैं। तो ये जो रीजंस हैं उनके कारण ही इसे लाया गया है। और एक और बात है कि एससी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू एलिमिनेट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड गैंग रेप इमेजरीज एक्सेट्रा। तो इसके लिए आईटी रूल्स लाए गए हैं। इसमें जो इंटरमीडियरीज हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल मीडिया की, उसे 2 भागों में बांटा जाएगा। फर्स्ट वन इज नोन एज नॉर्मल इंटरमीडियरीज एंड द सेकेंड वन जो थोड़े एनहेंस्ड होते हैं, जिसका समझ लीजिए 50 लाख से ज्यादा यूजर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अभी अभी जो आईटी रूल्स आए हैं उसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो उसमें हमें प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है, उन प्लेटफॉर्म्स को ये निर्देशन दिए गए हैं, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, यूजर्स की डिग्निटी आपको मेंटेन करनी है, वेरिफिकेशन का मार्क, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके आगे एक ऐसा वेरिफिकेशन का मार्क लगा हुआ होता है, वैसा नॉर्मली जो भी वेरीफाइड है उन सबके आगे लगा होना चाहिए, ताकि हम एक सिक्योर फील कर सकें, ठीक है, सिक्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरमीडियरीज को कहा गया है कि आप अनलॉफुल, जो लॉ के अगेंस्ट जाता है, ऐसे इंफॉर्मेशन को आप रिमूव कर सकें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज हैं उन्हें कहा गया है, ये आप याद रखिएगा, कि आप चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करें अपने प्लेटफॉर्म पे, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करें, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर ये अपॉइंट करें, ठीक है। मंथली आपका कॉम्प्लायंस का रिपोर्ट आना चाहिए। एंड किसी भी इंफॉर्मेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का फर्स्ट ओरिजिनेटर, कहाँ से वो पहला मैसेज स्टार्ट हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो उसे पता रहे, ठीक है, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकें जब भी कोई ऐसा फेक न्यूज या फिर कुछ भी ऐसा गलत कंटेंट कहीं से निकल कर आता है, ठीक है। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट करने को कहा गया है अकॉर्डिंग टू एज, कि एज के अनुसार अलग अलग कंटेंट होने चाहिए, एंड पेरेंटल लॉक्स को इम्प्लीमेंट करने को कहा गया है, ठीक है। जो फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए, ये जो फर्स्ट ओरिजिनेटर का आइडेंटिफिकेशन करने को कहा गया है, फर्स्ट मैसेज कहाँ से निकला है उसको पता लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि प्राइवेसी को ये ब्रीच करेगा, क्योंकि जो एनक्रिप्शन वगैरह होता है जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसको वो ब्रेक करेगा। तो ये एक रीसेंट न्यूज़ है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए।
तो इस सेशन में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें बहुत कुछ, जैसे कि WPI क्या होता है, CPI इन्फ्लेशन क्या होता है, इरडई के बारे में बात करेंगे, नेफ्ट, RTGS, IMPS, NACH क्या होता है, RRB रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में बात करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. ओके. एंड विद दिस एक मोटिवेशनल कोट है आपके लिए. सक्सेस जो है वो ओवरनाइट नहीं आता. ठीक है. आप जब सक्सीड कर लेते हैं ना तो आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे आंटी आपका बेटा तो बहुत लकी है. आपको कहा जाएगा, अरे आप तो बहुत लकी हैं कि आपको ये जॉब मिल गई. आपको ऐसा बहुत बोला जाएगा, लक से रिलेट किया जाएगा. लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता है. ठीक है. ये लक नहीं होता है, ये हार्ड वर्क होता है. इट इज व्हेन एवरी डे यू गेट अ लिटिल बेटर देन बिफोर. हर दिन आप पिछले दिन से ज़्यादा मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं वो ऐड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है एंड फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है. तो कभी भी आके इस प्रोसेस में आके गिव अप नहीं करना है हमें. लास्ट मोमेंट तक, अपने इंटरव्यू तक, लास्ट मोमेंट तक हमें हार नहीं माननी है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है. ओके. सो विद दिस लेट्स एंड द वीडियो. दिस इज साबिया रुखसार here signing off. See you all in our next class. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.